Good morning, student. Once more again, welcome to class 9th, and we are studying the topic why do we fall ill. Actually, this topic have been finished, but we are discussing about the some question from the question. Also, we can clear our concept. So, some of the questions I have given. First of all, I would like to explain the question, and I will try to explain the answer also, but it is depend upon you how to remind you. For that we will have to write and we have to show the answer. So first of all, the question: explain the giving reason a balanced diet is necessary for the maintaining the healthy body. So this is the question. Balanced diet, you must know about the balanced diet. Balanced diet means it is not same for the all the individual. It is depend upon the age, sex of the persons. uh, the growing baby, they require more of nutritious diet, protein diet, energy diet, because they perform the activity and the body is growing. For growing body, bodybuilding material is required. For aged person, the less energy is required, and the body is not further to develop. Therefore, there is no need of the more uh, protein diet. So it depends upon the person to person. Some persons, they used to perform laborious work in the field, in the farm, so they require the more energies. Or some persons, they have the sedentary works, sitting on the chair and whole day remain at a one place, so there is no movements of the body. Therefore, more whatever he uh, eat, so all that food is not useful for sitting purpose, so it requires the less diet. So diet is depend upon to persons type of the works. So according to the needs of the body, we have to take food that will contain the balance amounts of correct amount of the carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamin, roughage, right? So balanced diet is necessary for maintaining the body health. If the proper if the balanced diet is not there, so if the some nutrients, for example, if it is the growing baby, and if it is not getting the proper diet such as the protein, so protein is the body building material, so there will be no proper growth of the body. So there will be some symptoms of the malnutrition in the baby, and there will be no mental development also. So if the person working hard work, performing hard work, so it requires the more energy. So in his diet there must have the carbohydrate. If the less amount of carbohydrate, so he will not able to maintain his health. Likewise, the vitamins, minerals, they are also essential. So vitamins keep our body parts healthy. Minerals that help in the metabolism inside the body. So anyway, according to the person needs, there must have all the nutrients in balance quantity. Then he can maintain his uh, healthy, physically fit, and then physically fit, then he can work properly, so it can maintain the good health. Therefore the balanced diet is necessary. If the balanced diet is not there, so there will be malnutrition. If the excess of the food is taken, then there is again problem. For example, if you eat the more oily or more fatty food, so you will be soon be uh, fatty person, you will gain more weight, so that will cause other problem. So there should not have the too much of the food or the
too less food, so that there will be imbalance in the body. So therefore there should be the every component of the food in the balance. So excess of the food or the less amount of foods that imbalance our health. So there are less chances of the there are less chances that there will be the excess of the food, but there are more chances of the malnutrition in India. If the World Health Organization global index, if it is seen, so India in that index it is very pure, very poor. Many persons they are suffering from malnutrition disease. So uh, there are so many factors are there. There is a immunity power, right? That is also depend upon the balanced diet. So there will be less immunity, there will be no proper growth, there is no physical growth, there is no mental growth. So there are certain diseases like the malnutrition occur, so that can occur. So this should not happen. Therefore we should have balanced diet that maintain the our proper body health. Next question. So you can conclude whatever I explained. That was my explanation. Question was simple. Explain giving the reason balanced diet is necessary. Balanced diet because all the our physical activity that are depend upon our energy, and energy obtained from the food. So if the body is healthy, healthy person can perform its activity correctly. Let's see another question. Health of an organism depend upon the surrounding environmental condition. So I told you, if you take the balanced diet, you keep the hygienic condition, sanitizations, you keep yourself clean, neat and clean. But it will not depend upon only you, because if the people surrounding you, if they are not having the good practice, they may throw garbage, rubbish here and there, so that can create breeding grounds for the housefly, mosquito, rats. So they are the vector, they can spread the disease. तो हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज़म ये सिर्फ हमारे अकेले के ऊपर डिपेंड नहीं होता, तो हमारे सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है. अगर हम खुद ही साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं और घर साफ़ सुथरा रखते हैं और बीमारी से बचने के लिए हम नहाते हैं, धोते हैं, सफाई रखते हैं और बैलेंस डाइट करते, एक्सरसाइज करते, लेकिन इससे हम हेल्दी रहेंगे ये ज़रूर नहीं. क्योंकि हमारे पड़ोस के लोग भी वैसे होना चाहिए. अगर पड़ोस के लोग, हमारे नेबरिंग, हमारे सराउंडिंग, अगर वो गार्बेज, कचरा, गंदगी करते हैं जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती है, चूहे पैदा होते हैं, और वो न चाहते हुए भी फिर हमारे घर में घुसकर हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं. इसलिए हमारे सराउंडिंग के ऊपर भी हमारी हेल्थ डिपेंड है. तो इसलिए वो भी सराउंडिंग साफ़ सुथरी होना चाहिए. नेक्स्ट, आवर सराउंडिंग एरिया शुड बी फ्री ऑफ द स्टैगनेंट वाटर. स्टैगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी. तो हमारे सराउंडिंग में कहीं रुका हुआ पानी नहीं रहना चाहिए. कोई बर्तनों में बहुत दिन से पानी पड़ा नहीं रहना चाहिए, गड्ढे के अंदर नहीं रहना चाहिए, टायर के अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई यूटेंसिल उसके अंदर बहुत दिन से पानी जमा नहीं रहना चाहिए. तो क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अगर पानी ज़्यादा दिन तक वहाँ रहेगा तो पानी ये मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है. वो ब्रीडिंग उसका एरिया तैयार हो जाता है. मच्छर उसके अंदर अंडे देते हैं और मच्छर के लार्वा उसके अंदर पनपते हैं और थोड़े ही दिन में फिर वो
मच्छरों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमारे आसपास पानी स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, उससे फ्री रहना चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल हार्मोनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशन आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो सोशल हार्मोनी होना और इकोनॉमिक गुड कंडीशन होना ये ज़रूरी क्यों है गुड हेल्थ के लिए, तो ये क्वेश्चन था। तो हमने पढ़े हैं कॉजेस ऑफ डिसीज़ के दो कॉजेस पढ़े हैं, एक है इमीडिएट कॉज और दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो इमीडिएट कॉज में तो हमने इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूटरी कॉज जो है मतलब दूसरे कॉजेस जैसे गुड इकोनॉमिक कंडीशन होना ज़रूरी है, क्योंकि गुड इकोनॉमिक कंडीशन रहेगा तभी वो फैमिली अपने परिवार के मेंबर्स के लिए पर्याप्त भोजन खरीद सकते हैं, पर्याप्त भोजन बना सकते हैं और बैलेंस डाइट देकर अपनी गुड हेल्थ रख सकते हैं। इसी तरह से सोशल हार्मोनी मतलब समाज के अंदर हम तालमेल के साथ में रहना है। अगर समाज के साथ में हम अगर अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो हमको वहाँ रहने के लिए प्रॉब्लम होता है और काम करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। किसी के साथ हमारा किसी तरह का व्यवहार नहीं हो सकता है और जिसकी वजह से हम अपना रोजी रोटी नहीं कमा सकेंगे। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो हमारा व्यवहार भी सोसाइटी के अंदर फिट हो सके, इस तरह से व्यवहार रहे तो हम वहाँ पे हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम किसी के भी ऊपर गुस्सा हो जाता तो बेवजह अगर हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं तो हमको धीरे धीरे सोसाइटी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसलिए सोसाइटी में हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उसके साथ में हम हार्मोनी के साथ में रहना है, उनके साथ में तालमेल बनाकर रखना है। हमारे सोसाइटी के जो नियम है उसके मुताबिक हमको रहना पड़ता है ताकि हम सोसाइटी से हम बाहर ना निकाले जाए। तो ये ज़रूरी है, तभी हम हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो करना जो हमारे हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे हमारे हेल्थ के लिए है ना बैलेंस डाइट, साफ़ सुथरापन और हमारे सराउंडिंग, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के साथ भी हम बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, हार्मोनी के साथ में रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, becoming exposed to or infected with the infectious microbe does not necessarily means developing noticeable disease, explain। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए। बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड with infectious microbes does not necessarily means developing the noticeable disease, explain। मतलब हम अगर एक्सपोज हो जाते हैं या इन्फेक्टेड पर हो जाते हैं या हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि इससे हमको मतलब नोटिस ना हो। मतलब इन्फेक्शन चले भी जाए हमारे बॉडी के अंदर तो लेकिन कभी कभी वो बीमारी डेवलप नहीं होती है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन जिसको है उसके संपर्क में गए या हमारे बॉडी में इन्फेक्शन गया, फिर भी हमारे अंदर जो होना चाहिए सिम्टम्स वगैरह वो डेवलप नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण होते हैं, दो कारण लिख सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि माइक्रोब जो है हमारे बॉडी में घुस जाए, उसकी संख्या अगर कम है
तो वो माइक्रोब्स थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद में वो ख़त्म हो सकते हैं, मार दिए जा सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी किसकी वजह से अच्छी होती है? तो अच्छा अगर डाइट है, बैलेंस डाइट है, और हम सारी कोशिश करते हैं हेल्दी रहने की, और हम हेल्दी है, इम्यूनिटी हमारी बनी है, तो हमारे बॉडी के जो WBC है वो अंदर में घुसने वाले जो माइक्रोब्स है उसको घुसते उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत बार वो इन्फेक्शन का एहसास ही नहीं होता है। तो इस वजह से हमको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। तो ये इसके कारण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एनी 4 फैक्टर नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए 4 फैक्टर है, तो आप बहुत सारे बता सकते हैं हेल्दी बनने, हेल्दी पर्सन के लिए 4 फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो रोज़ साफ़ सुथरा रहना है, हमारे सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखना है, बैलेंस डाइट लेना है, हम एक्सरसाइज करना है, हम योगा करना है, हमने प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर किए, ये सभी ज़रूरी फैक्टर है, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 4 से भी बहुत सारे फैक्टर बता सकते हैं। तो हम नहाना धोना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, कपड़े को धूप में सुखाना, हमारा घर साफ़ सुथरा रखना, हमारे घर के आसपास का सराउंडिंग साफ़ सुथरा रखना, वैक्सीन लगाए रखना, और मच्छरों को नहीं पनपने देना। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ एड्स कंसिडर टू बी ए सिंड्रोम एंड नॉट अ डिसीज़। तो जो एड्स है इसको कहा जाता है सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, तो एड्स का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से बता रहा हूँ एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एस फॉर सिंड्रोम्स, तो इसको सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसको सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, डिसीज़ क्यों नहीं बोलते हैं? एड्स को हम डिसीज़ नहीं बोलते, एक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये फुल फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म में मीनिंग क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो प्राप्त किया है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, मतलब प्रतिकार शक्ति जो हमने प्राप्त की है, जो प्राप्त होती है इम्यूनिटी, डी फॉर डिफिशियंसी, लेकिन वो डिफिशियंसी होगी, उसकी ख़त्म होगी, कम हो गई। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर ख़त्म होगी, डिफिशिएंट हो गई, तो फिर क्या हो सकता है? तो हमारे बॉडी के अंदर निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, मीज़ल, पोलियो, एमीबियासिस, डेंगू, किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में घुसकर हमको एक नहीं, दो नहीं, अन्य बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी ही ख़त्म हो जाती है। तो एड्स की वजह, एड्स के मतलब HIV इन्फेक्शन की वजह से एक बीमारी नहीं होती है, तो हमारे शरीर ही बहुत सारी बीमारियों के लिए खुला हो जाता है। बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, इसलिए बीमारी के ग्रुप को हम बोलते हैं डिसीज़। तो ये आज के लिए ये क्वेश्चन थे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। और कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, और कुछ लोगों के पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसी के घर में नेटवर्क नहीं है, किसी के पेरेंट्स के पास में एक ही फ़ोन है, वो जो काम पर ले जा रहे, खेत में ले जा रहे हैं, तो वो समय पर नहीं सुन पा रहे हैं, या मेरे पहले वाले वीडियो किसी के पास नहीं पहुँचे हैं। तो मैं फिर से ये टॉपिक को फिर से एक बार कल बताना चाहूँगा। तो मेरा मैसेज आप सभी के लिए है, अगर आपके
क्लासमेट्स कहीं किसी तरह से अगर जुड़ सकते हैं तो उनको कांटेक्ट करना है। मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे मुझे बात करना है और अ, मेरा वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करना है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई समझ ना आए तो ज़रूर सीखने की कोशिश करें। मैं बहुत बड़ा बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप उसको सुनते सुनते आप ड्रॉजी हो सके, नींद आने लगे। तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको पूरी अच्छी तरह से कैसे आपको वो टॉपिक से अवगत कराऊंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।